Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, word mail merge. In this chapter, you will learn about exploring mail merge, envelopes and labels. Mail merge is a feature of Word that helps in sending the same letter to a number of people. Using mail merge, you can create personalized letters, envelopes, labels, name tags, email messages and directories. The mail merge process involves the following 3 steps. Number 1, creating main document. Number 2, creating a data source. And number 3, merging main document and data source. For example, in a form letter, your main document would be the letter informing the parents to be called for a parent-teacher meeting. The data source is where the fields of information on each parent receiving the letter are located. The data source would contain names, addresses, phone numbers, etc. In this process, the main document is linked to the data source by common fields of data called merge fields to get output documents. If you are printing envelopes or address labels, the main document would be the envelopes or the sheet with labels on it. Data source would be the addresses that are to be placed on these envelopes or labels of sheets. Okay. देखिए मेल मर्ज आपका एक फीचर है जिसकी हेल्प से आप सेम लेटर को बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं ओके और मेल मर्ज की हेल्प से आप पर्सनलाइज लेटर्स भी क्रिएट कर सकते हैं एनवेलप्स लेबल्स नेम टैग्स ये सब क्रिएट कर सकते हैं राइट तो इसमें आपके 3 स्टेप्स होते हैं सबसे पहले मेन डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना फिर डेटा सोर्स को क्रिएट करना फिर मेन डॉक्यूमेंट एंड डेटा सोर्स दोनों को मर्ज करना राइट जैसे कि एक आपका फॉर्म लेटर है तो मेन डॉक्यूमेंट आपका क्या होगा उसमें वो लेटर होगा जिसमें पेरेंट्स को पेरेंट टीचर मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म किया जा रहा है राइट ओके अब डेटा सोर्स आपका क्या है जहाँ पे आपका जो फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन है ओके मतलब कि ऑन ईच पेरेंट रिसीविंग द लेटर लोकेटेड है एंड डेटा सोर्स में आपका होगा आपका नेम होगा एड्रेस होगा फ़ोन नंबर्स होगा ओके देखिए इस तरह से दिया गया देखिए लेटर जो आपके पेरेंट को दिया जा रहा है दिस इज़ योर मेन डॉक्यूमेंट इसके बाद आपके पास जो नेम है एड्रेस फ़ोन नंबर दिस इज़ डेटा सोर्स एंड उसके बाद जो नंबर्स ऑफ लोग उसे रिसीव कर रहे हैं नंबर ऑफ पीपल को भेजा जा रहा है ये आपका आउटपुट डॉक्यूमेंट्स है राइट ओके तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो मेन डॉक्यूमेंट होता है वो लिंक्ड होता है डेटा सोर्स के साथ बाय कॉमन फील्ड्स ऑफ डेटा जिन्हें कहा जाता है मर्ज फील्ड्स ओके टू गेट आउटपुट डॉक्यूमेंट्स अगर आप एनवेलप्स या एड्रेस लेबल्स आप प्रिंट कर रहे हैं तो जो मेन डॉक्यूमेंट है वो आपका एनवेलप होगा या फिर आपका शीट जिसमें लेबल्स होंगे ओके एंड व्हाट वुड बी द डेटा सोर्स वुड बी द एड्रेस ओके जो कि आप प्लेस करेंगे उन एनवेलप्स पे या जो शीट्स के लेबल्स हैं उस पर राइट When you are performing a mail merge, you will need a Word document. You can start with an existing one or create a new one and a recipient list which is typically an Excel workbook. तो जब आप मेल मर्ज परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको वर्ड डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी एक रिसिपेंट लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो आपका टिपिकली एक एक्सेल वर्कबुक है राइट Just for your information, a data source file can be of many forms such as an Excel, a database or even another Word document that has a table in it. Okay, अब आपकी जो data source file है ना वो बहुत सारे फॉर्म्स में हो सकती है Excel की फॉर्म में हो सकती है database हो सकता है या फिर दूसरा Word document हो सकता है जिसके अंदर टेबल हो राइट Exploring mail merge. Step 1. Open an existing Word document or create a new one. Step 2. Click the Mailings tab. Step 3. Click the Start Mail Merge command. Step 4. Select a step-by-step Mail Merge wizard. The Mail Merge task pane appears and will guide you through the 6 main steps to complete a merge. The following is an example of how to create a form letter and merge the letter with a recipient list. देखिए आपको मेल मर्ज को एक्सप्लोर करना है सबसे पहले आप कोई भी एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं और यू कैन क्रिएट द न्यू वन ओके इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस ओके तो इसके बाद हम क्लिक करेंगे ओके मेलिंग टैब पे फिर क्लिक करेंगे स्टार्ट मेल मर्ज कमांड देन स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विज़ार्ड ओके अब देखिए इसमें आपके ये जो आपका मेल मर्ज टास्क पे ना जो अपीयर हो रहा है आपको गाइड करेगा इसमें 6 मेन स्टेप्स आ रहे हैं आपके है ना जिससे कि अपने मर्ज को कंप्लीट कर सकते हैं तो देखिए Step 1. Choose the type of document you want to create. In this example, select letters. Next, click Next, Starting Document to move to Step 2. Step 2. Select Use the current document. Click Next, select Recipient to move to Step 3. Step 3. Now, you will need an address list so Word can automatically place each address into the document. The list can be in an existing file or you can type a new address list from within the mail merge wizard.
From the mail merge task pane, select use an existing list, then click browse. Locate your file in the dialog box. You may have to navigate to a different folder, then click open. If the address list is in an Excel workbook, select the worksheet that contains the list and then click OK. In the mail merge recipient dialog box, you can check or uncheck each recipient to control which ones are used in the merge. When you are done, click OK to close the dialog box. From the mail merge task pane, click next, write your letter to move to step 4. Step 4. Now you are ready to write your letter. When it is printed, each copy of the letter will be same except the recipient data like the name and address will be different on each one. You will need to add placeholders for the recipient data so mail merge knows exactly where to add the data. To insert recipient data, place the insertion point in the document where you want the information to appear. Select address book, greeting line, electronic postage or more items from the task pane. Depending on your selection, a dialog box may appear with various options. Select the desired options, then click OK. A placeholder appears in your document, for example, address block. Repeat these steps each time you need to enter information from your data record. From the mail merge task pane, click next, preview your letters to move to step 5. For some letters, you will only need to add an address block and greeting line. Sometimes, however, you may want to place recipient data within the body of the letter to further personalize it. Step 5. Preview the letters to make sure information from the recipient list appears correctly in the letter. You can use the left and right scroll arrows to view each document. Click next, complete the merge to move to step 6. Step 6. Click print to print the letters. The merge to printer dialog box opens, click all, then click OK. The print dialog box will appear, adjust the print settings if needed, then click OK. OK. अब आपके पास देखिए 6 स्टेप्स है जिन्हें आपको कंप्लीट करना है, राइट? तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप सबसे पहले टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट चूज करना चाहते हैं विच वी वांट टू क्रिएट. ओके, तो हमने देखिए हमने चूज किया लेटर्स, देन हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, राइट? फिर हम सिलेक्ट करेंगे यूज द करंट डॉक्यूमेंट, फिर नेक्स्ट सिलेक्ट रिसिपेंट्स. ओके ओके. अब देखिए हमें ना एक एड्रेस लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि जो वर्ड है वो ऑटोमेटिकली हर एड्रेस को डॉक्यूमेंट में प्लेस कर दे. ओके, आप ये अब आपकी लिस्ट कोई एग्जिस्टिंग फाइल भी हो सकती है या फिर कोई आप न्यू एड्रेस लिस्ट को टाइप कर सकते हो. ओके, तो देखिए अब देखिए मेल मर्ज टास्क पेन से आपने सिलेक्ट करना है यूज इन एग्जिस्टिंग लिस्ट, फिर हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे. ओके, फिर आप यहाँ पे देखिए ओपन पे क्लिक करेंगे. ओके, अगर तो आपकी एड्रेस लिस्ट एक्सेल वर्कबुक में है तो वर्कशीट को आप सिलेक्ट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे ओके क्लिक. ओके, अब देखिए आपका जो मेल मर्ज रिसिपेंट डायलॉग बॉक्स है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हर रिसिपेंट को चेक या अनचेक कर सकते हैं ईच रिसिपेंट को कि आपने किसको मर्ज करना है. ओके ओके, और उसके बाद आप क्या करेंगे जब आप ये सब चेक कर लेंगे क्लिक करेंगे हम ओके पे, जिससे कि ये डायलॉग बॉक्स आपका बंद हो गया, राइट? अब देखिए फिर आप करेंगे क्लिक नेक्स्ट राइट योर लेटर. नाउ अब आपको अपना लेटर टाइप करना है. तो जब ये प्रिंट होगा ना आपकी तो लेटर की हर कॉपी सेम होगी एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट द रिसिपेंट डेटा, मतलब कि नेम एंड एड्रेस वो भी तो वो डिफरेंट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम एक लेटर को बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल को सेम टाइम पे सेंड कर रहे हैं बट वो सारे लोग सेम नहीं है, उनका एड्रेस सेम नहीं है, राइट? ओके, तो आप क्या करेंगे देखिए हमें प्लेस होल्डर्स को ऐड करना पड़ेगा रेसिपेंट डेटा के लिए, जैसे कि मेल मर्ज को पता चले कि एग्जैक्टली वेयर टू ऐड द डेटा. ओके, तो देखिए रेसिपेंट डेटा को इंसर्ट करने के लिए इंसर्शन पॉइंट हम रखेंगे डॉक्यूमेंट पे जहाँ पे हम चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन अपीयर हो. ओके, हम एड्रेस बुक्स ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे, ग्रीटिंग लाइन, इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज और मोर आइटम्स, ये आपके जो ऑप्शंस आ रहे हैं ना आपके 4 में से इनमें से. ओके, तो इसके बाद आप जो भी सिलेक्शन करेंगे डायलॉग बॉक्स आपका अपीयर होगा, है ना? फिर जो भी ऑप्शन हमें चाहिए हम क्या करेंगे उसको सिलेक्ट करेंगे, देन हम क्लिक करेंगे ओके बटन. ओके ओके, अब प्लेस होल्डर अपीयर हो गया आपके डॉक्यूमेंट में. फिर इस स्टेप को
रिपीट करना है जब जब हम क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन को एंटर करेंगे। इसके बाद मेल मर्ज टास्क पेन में से आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट प्रीव्यू योर लेटर्स, और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। ओके अच्छा, कुछ लेटर्स के लिए ना आपको सिर्फ एड्रेस ब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी और ग्रीटिंग लाइंस की, है ना। और कई बार क्या होता है कि हो सकता है हम चाहें कि जो रिसिपिएंट डेटा है उसको हम प्लेस कर दें लेटर की बॉडी के अंदर, ठीक है, उसको फर्दर पर्सनलाइज करने के लिए। ओके अब नेक्स्ट देखिए आपको क्या करना था। नेक्स्ट प्रीव्यू लेटर्स के बाद ओके आपने लेटर को प्रीव्यू करना है, मेक श्योर करना है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्टली है या नहीं है। ओके इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट कंप्लीट द मर्ज पे, फिर क्लिक प्रिंट करेंगे और फिर करेंगे ऑल और फिर ओके। अच्छा देखिए अब आपके पास ये जो प्रिंट डायलॉग बॉक्स से अपीयर हो गया, इसमें अगर आपको प्रिंट सेटिंग्स को एडजस्ट करना है ज़रूरत है तो हम करेंगे, और उसके बाद हम करेंगे क्लिक ओके पे। ओके और आपका ये जो मेल मर्ज है ये आपका हो जाएगा, राइट। Just for your information, the mail merge file will hold special symbols, mail merge fields which will substitute the name and address and other relevant information stored in the data file. Okay, जो mail merge फाइल है उस पर कुछ स्पेशल सिंबल्स वो होल्ड करके रखता है जो कि नेम और एड्रेस को सब्सटीट्यूट करते हैं या जो दूसरी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपकी डेटा फाइल में स्टोर्ड होती है, राइट। Just for your information, mail merge is sometimes also called as print merge. Mail merge को कई बार print merge भी कहा जाता है, right? Envelopes. There are times when you may need to print several envelopes that have the same delivery address, or you may need to keep an envelope on file for future use. The developers, it would provide the capability to add an envelope to your current document, but not to create a new document that contains just an envelope. देखिए कई बार क्या होता है कि आपको बहुत सारे एनवलप्स को प्रिंट करना पड़ता है जिसमें सेम डिलीवरी एड्रेस होता है आपका, और कई बार क्या होता है कि आपको एक एनवलप रखना होता है फाइल में फॉर फ्यूचर यूज़। तो जो डेवलपर्स होते हैं वर्ड में वो क्या प्रोवाइड करते हैं कि एक आप एनवलप को ऐड कर सकते हैं अपने करंट डॉक्यूमेंट में, बट एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं कर सकते जिसमें जस्ट आपका एनवलप। ओके तो किस तरह से क्रिएट किया जाता है एनवलप को, चलिए देखते हैं। Let us see how to create and use envelopes. Step 1. Open an existing document that contains the address you want to use on your envelope. Step 2. Highlight the address and copy it to the clipboard by pressing Ctrl+C. Step 3. Create a new document. Step 4. Display the mailings tabs of the ribbon. Step 5. Click envelopes in the create group. Word displays the envelopes and labels dialog box. Step 6. Make sure the envelopes tab is selected. Step 7. Place the insertion point in the delivery address area. Step 8. Press Ctrl+V to paste the address you copied in Step 2. Step 9. Using the options button, you can change the orientation and formatting. Step 10. Click on the add to document button. Your envelope is ready and it can be saved and printed. Okay. देखिए आपको क्या करना है, आप कोई भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे जिसमें आपका एड्रेस होगा जो आप अपनी एनवलप पे यूज़ करना चाहते हैं। ओके अब देखिए एड्रेस को हाईलाइट करना है, इसको क्लिपबोर्ड पे कॉपी करना है, तो कॉपी आपको पता कैसे करेंगे हम, Ctrl+C से, राइट। एक न्यू डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट करना है। ओके इसके बाद देखिए एनवलप्स पे क्लिक करेंगे। ओके एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट एनवलप टैब इज सिलेक्टेड। ओके अब देखिए ये जो आपका डिलीवरी एड्रेस एरिया है यहाँ पे आपको इंसर्शन पॉइंट रखना है, फिर आपने जो यहाँ पे हम करेंगे Ctrl+V और आपका ये पेस्ट हो जाएगा जो आपने कॉपी किया था, राइट। इसके बाद ये जो ऑप्शंस बटन है इसका यूज़ करके हम ओरिएंटेशन या फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर हम क्लिक करेंगे ऐड टू डॉक्यूमेंट बटन। ओके और ये देखिए आपका एनवलप रेडी है, इसको हम सेव कर सकते हैं और हम प्रिंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लेबल्स। In the mailings tab, the labels feature can also be found. There are two types of labels you can print. Number 1, pages of labels containing the same address. Number 2, pages of labels where each label contains a different address. अच्छा, आपको देखिए मेलिंग टैब में लेबल फीचर भी मिलेगा। अब दो तरह के लेबल्स होते हैं जिन्हें आप प्रिंट कर सकते हैं।
एक होता है आपका पेजेस ऑफ लेबल जिसमें आपका सेम एड्रेस होता है, और एक होता है आपका जहाँ पे हर लेबल में डिफरेंट एड्रेस होता है, राइट. लेबल्स विद द सेम एड्रेस. स्टेप 1. Open Word and click Mailings tab on the ribbon, then click Labels. Step 2. In the print section of the labels window, not the print button at the bottom, choose full page of the same label. Step 3. Click the options button at the bottom of the window. Select the product number from the list and click OK. Step 4. On the labels window, type the address in the address box. To change font properties, highlight the address, right click and click Font. Make your changes and click OK. Step 5. Still on the labels window, click the new document button at the bottom. A Word document will appear containing the labels. Your labels with same address are ready and it can be saved and printed. Okay. चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है? Of course, आप Word ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे मेलिंग टैब्स को, देन लेबल्स, फिर देखिए यहाँ पे हम चूज करेंगे फुल पेज ऑफ द सेम लेबल को. ओके, देन हम क्लिक करेंगे ऑप्शंस बटन, फिर प्रोडक्ट नंबर सेलेक्ट करना है. ओके, देन ओके. अब देखिए लेबल्स विंडो में आपको एड्रेस टाइप करना है एड्रेस बॉक्स में. अगर आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, एड्रेस को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो राइट क्लिक करेंगे और फिर क्लिक करेंगे फॉन्ट पे. ठीक है, अगर आप इसको मैं आपको जो भी चेंजेस करने आप कर सकते हैं, और उसके बाद आप करेंगे ओके पे क्लिक. ओके, इसके बाद आपको क्लिक करना है न्यू डॉक्यूमेंट बटन पे. ओके, अब देखिए ये आपका डॉक्यूमेंट अपीयर हो रहा है जिसमें लेबल्स हैं, है ना. अब देखिए आपके जो लेबल्स सेम एड्रेस के साथ रेडी है, इसको आप सेव कर सकते हैं, आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, राइट. नेक्स्ट, लेबल्स विद डिफरेंट एड्रेसेस. First, you will create the list of different addresses. So, open a new blank document and click Mailings tab on the ribbon. Step 1. Click Select Recipients in the Start Mail Merge group and choose Type a new list. Enter new addresses for address list. Step 2. Press OK and see the list to desktop. Step 3. Click Start Mail Merge and click Labels. Select the product number from the list and click OK. Step 4. Click Select Recipients and choose Use an Existing List and select the address file which you have prepared. Click Open button. Now type 2 in the label and click on Mailing tab. Insert Merge Fields Title. Repeat this step to insert other fields like first name, last name. Now copy these inserted fields to the label after next record. Finally, your window should be as below. Step 5. Now click on Preview Results button. Your labels with different addresses are ready. Save this document. Okay. अब आपके पास क्या है? देखिए आपके लेबल जिसमें आपके डिफरेंट एड्रेसेस हैं, राइट. तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप डिफरेंट एड्रेसेस की लिस्ट को क्रिएट आपको करना है, ठीक है. तो आप एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, फिर मेलिंग्स टैब को क्लिक करेंगे. ओके, अब देखो आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है आपको सिलेक्ट रेसिपिएंट्स, है ना. फिर हम चूज करेंगे टाइप अ न्यू लिस्ट. ओके, फिर हम न्यू एड्रेस को एंटर करेंगे एड्रेस लिस्ट के लिए. ओके, देन आप प्रेस करेंगे ओके. फिर आप क्लिक करेंगे स्टार्ट मेल मर्ज, फिर लेबल्स. ओके, फिर हमने प्रोडक्ट नंबर को इसमें से सेलेक्ट करना है, देन ओके. फिर सिलेक्ट रेसिपिएंट पे क्लिक करेंगे, कोई भी एग्जिस्टिंग लिस्ट को चूज करेंगे. ओके, फिर एड्रेस फाइल को सिलेक्ट करना है जो आपने प्रिपेयर किया है, फिर क्लिक करेंगे ओपन बटन पे. ओके, अब आपके पास ये 2 जो आ रहा है ना, लेबल में टाइप करेंगे 2 एंड क्लिक करेंगे द मेलिंग टैब्स, फिर इंसर्ट मर्ज फाइल्स एंड देन टाइटल. इस स्टेप को हम रिपीट करेंगे दूसरे फील्ड्स को इंसर्ट करने के लिए. जैसे कि मतलब फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, और इनको हम इन इंसर्टेड फील्ड्स को कॉपी करेंगे दूसरे लेबल पे. ओके, और देखिए नाउ ये देखिए अब आपकी विंडोज तैयार है इस तरह से, है ना. 2 नेक्स्ट रिकॉर्ड्स इन दिस वन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम.
देन हम क्लिक करेंगे प्रीव्यू रिजल्ट बटन पे और आपका जो लेबल्स हैं देखिए ये डिफरेंट एड्रेसेस के साथ आपका रेडी है. नाउ यू कैन सेव दिस डॉक्यूमेंट. ओके children, here are two questions given in cleanup. What is the use of mail merge and what is the other name of mail merge? इनके आंसर आपको खुद से करने हैं, right? Next, summing up. Mail merge is a feature of Word that helps in sending the same letter to a number of people. Personalized letters, envelopes, labels, name tags, email messages and directories can be created using mail merge. The data source contains fields of information such as names, addresses, phone numbers, etc. In the Mailings tab, the envelopes and labels feature can be found in the same place. There are two types of labels you can print. Pages of labels containing the same address and pages of labels where each label contains a different address. I hope children आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.